Okay, so now in today's lecture, we'll start the second application of this unit number 6. Okay, so basically this unit is actually the applications of partial differential equation. Okay, that is the title. So at that we have to learn the different applications of partial differential equation. We started with the first, okay, and then our second application is one-dimensional heat flow. Okay, in yesterday's lecture we have completed the one-dimensional wave equation. Okay, that is your first application. अगर आपको वो समझ में आ रहा है, okay, so this second application is almost similar to the wave application. That's why students find this topic very much easy, है ना? Except that last few calculation, okay, other things are not that much difficult. ठीक है? So okay, and if time is there, I will also explain that one example. I think I have shared that calculation also. Last lecture में एक example का calculation वहाँ पे wrong था, जो मैंने आपको बोला था मैं आपको कल के lecture में बोलता हूँ, okay? या मैंने already वहाँ पे PDF में add किया है. Still, if you are not getting that, then I will explain in lecture. ठीक है? तो that is one part. Okay. So now without wasting our time, we'll start our second application. So remember, this application is almost similar to your wave equation. दोनों में same logic है, same steps है, ठीक है? So consider a homogeneous bar of uniform cross section coated with insulating material of length L. So in general length में ले रहा हूँ, okay? It is assumed that the loss of heat from the sides by conduction or radiation is negligible. These are all the assumptions to find the solution of the heat equation, correct? And now let u x comma t. Okay, what is this u? So this u is actually the temperature of the bar, depends on the distance x of the point from one end and at time t. Okay, at any time t. So in this topic, basically this U stands for the temperature. Okay, so here this U stands for temperature. Now next part is what? So these are all the assumptions from which you will get the boundary conditions or the initial conditions. Assume that the ends of the bar are maintained at zero temperature. The simple मतलब experiment basically क्या है? एक बार आपको consider करना है. Consider one bar, okay, of length L. Okay, and at the ends of this bar you have to maintain that temperature to be zero. ठीक है, तो आप चाहो तो आइस में रख दो, ओके, कैसे भी करके एट देन यू हैव टू मेंटेन दैट एंड्स ऑफ द बार एट जीरो टेम्परेचर. ठीक है, सो यूजिंग दिस, ओके, द करस्पॉन्डिंग हीट इक्वेशन इज गिवन बाय डैबा यू बाय डैबा टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डैबा स्क्वायर यू बाय डैबा एक्स स्क्वायर, where c is actually the constant of, okay, divisibility of the material. Okay, so basically c is the constant. ठीक है, सो डैबा यू बाय डैबा टी, लास्ट लेक्चर में ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था यहाँ पे स्क्वायर था. ठीक है, सो हियर डैबा यू बाय डैबा टी, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इज इक्वल टू सी स्क्वायर डैबा स्क्वायर यू बाय डैबा एक्स स्क्वायर. सो दिस इज एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ, ओके, हीट इक्वेशन, वन डायमेंशन हीट इक्वेशन. दिस इज योर वन डायमेंशन हीट इक्वेशन सब्जेक्ट टू द कंडीशंस. ओके, so clearly as u is the temperature, so this temperature must be bounded because we can't work on unbounded temperature. So this temperature must be bounded for all t, for at any time. Okay, at any time if you consider a temperature, that temperature must be bounded. It's a trivial part. Okay, so this is the trivial assumption that you need to consider. Okay, we can't solve for unbounded temperature. Next is what? As we know that the ends of this bar is actually maintained at zero temperature. So when x is equal to zero, when distance is zero, that is at first end your temperature is zero, correct? And when x is equal to L, okay, that is the length of this, okay, at that time your temperature is, so at this end your temperature is zero. So that is already given that the ends of this bar is maintained at zero temperature. So from that statement you will get these two initial conditions. And what is this fourth initial condition? So at any time, okay, बेसिकली आपको करना क्या है? एंड्स को आपने जीरो टेम्परेचर पे मेंटेन किया है, ओके, और फिर आपको एक यूजिंग दिस फंक्शन, यूजिंग दिस एफ ऑफ एक्स, यू हैव टू गिव सम हीट, ओके, एट सर्टेन डिस्टेंस एक्स, दैट इज योर इनिशियल हीट व्हेन टाइम टी इक्वल टू जीरो. ठीक है, इस फंक्शन का यूज करके आपको हीट प्रोवाइड करनी है. ठीक है, एंड
Okay, this is your initial hit. Okay, and after that you can easily observe here that okay there is some loss of heat that we need to calculate. Okay, so these are all your initial conditions, and you have x0 is your f of x, that is the given hit, initial hit that is given to bar. Okay, that is the initial hit given to the bar, and from this you can calculate the temperature, that is u of x t. Okay, this you can calculate the temperature at any x. Okay, किसी भी x के लिए at any distance आप वो temperature calculate कर सकते हो, for this x, for this x2, x1 like that, and at any time t. Okay, that is the question. क्योंकि कभी कभी इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, कैलकुलेट द टेम्परेचर व्हेन एट द मिडल ऑफ द दिस रॉड, कैलकुलेट टेम्परेचर एट द मिडल ऑफ दिस रॉड. तो उस केस में आपको क्या करना होगा, एज वी नो दैट लेंथ ऑफ दिस rod is L. Okay, so the temperature at the middle of this rod, for that we need to put x is equal to L by 2. So just put x is equal to L by 2, calculate karo, that gives you the temperature at the middle of the rod. Okay, so using this all conditions, using this all initial conditions, we can calculate the temperature at any x and at any time. Okay, so that is your experiment. And now in this case basically, okay, ये जो इसका जो proof है ना, it is already there in the book. Okay, this is मैंने आपको कल ही बोला था, ये सिंपल और ट्रिवियल प्रूफ है, बट विच इज नॉट देयर इन सिलेबस, इसलिए मैंने वो स्किप किया. वो भी लेंथी प्रूफ है. ठीक है, तो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन रेफर दैट. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे बोल सकते हो. बट एज फार एज आवर सिलेबस इज कंसर्न, एज इट इज अप्लाइड मैथमेटिक्स, सो इट्स नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू प्रिपेयर दैट प्रूफ. ठीक है, पहले आप फर्स्ट फोकस आपका एप्लीकेशन होता है, ट्राई टू अप्लाई दैट थियरम. ओके, दैट यू हैव टू लर्न फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट if you are interested you can refer in detail. Okay, so in a similar way the general solution, okay, मेरे पास इसका proof भी है, if you want I will share that PDF also. So the general solution of this heat equation, okay, del by u by del by t equal to c square del by square u by del by x square, that general solution is this, u of x t equal to, अभी आपका वही क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे c4 क्यों कंसिडर किया है, c5 क्यों कंसिडर किया है, ये सॉल्व हो क्या मिल रहा है आपको. जब आप सॉल्व करते हो ना, वो जब आप इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हो ना, तब जाके सारे वैल्यूज मिल रहे हैं. सो एंड यही वैल्यूज बुक में भी उन्होंने कंसिडर किया है, तो इसलिए मैं सेम रेफर कर रहा हूँ. अदरवाइज आई कैन चेंज दिस टू C1 एंड C2, ये भी मैं कर सकता था, बट अभी आगे जाकर कभी MCQ आ जाता है, या कभी मतलब कोई ऐसा टॉपिक जो बुक रिलेटेड अगर क्वेश्चन सेट होता है तो आपको प्रॉब्लम होगा आइडेंटिफिकेशन में. सो दैट्स वाई जैसे बुक में वैसे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. अदरवाइज यू कैन चेंज दिस कोएफिशिएंट आल्सो, या आपकी चॉइस, आप C1 C2 भी ले सकते हो, बट जैसे बुक में वैसे आप जाओ तो आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए इजी होगा. ओके, सो दैट जनरल सोल्यूशन u ऑफ x t इज इक्वल टू c4 cos mx प्लस c5 sin mx मल्टीप्लाई बाय दिस होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय e रेज टू माइनस c स्क्वायर m स्क्वायर t. ठीक है, तो ये तो आपको कैसे भी करके याद रखना होगा, तभी आगे सारी चीजें आपको क्लियर आएंगी. ठीक है, ओके, आई थिंक वेव इक्वेशन में अलग था, यहाँ पे c1 cos प्लस c2 cos मल्टीप्लाई बाय ओके c3 एंड c4 ऐसे टर्म्स थे वहाँ पे. बट इन केस ऑफ हीट इक्वेशन यू विल हैव c4 cos mx प्लस c5 sin mx e raised to minus c square m square into t. ओके, नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. अभी ये जो स्टेप्स मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने आपको कल ही बोला था कि ऑलमोस्ट 80% स्टेप्स यही लिखने हैं आपको, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. लास्ट में बस आपको 20% कैलकुलेशन करना है, डिपेंड ऑन यूर एफ ऑफ एक्स. ये जो भी एफ ऑफ एक्स होगा, डिपेंड ऑन दैट एफ ऑफ एक्स, आपको जो bn का कैलकुलेशन है बस वो अलग से करना है. अदरवाइज ये सेम कॉपी पेस्ट आपको सारे एग्जाम्पल में करना है. ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट विद दी steps. So what is given? We have given the heat equation that del by u by del by t equal to c square del by square u by del by x square. Okay, subject to these boundary conditions that u of x t is bounded for all t. At the end points of this bar or the rod, your temperature is 0, that is u 0 t is 0 for all t, u L t is 0 for all t, and u x 0 when time t equal to 0, the initial heat is given to the bar is what? U of x0 is equal to f of x. It is given by using some function which is f of x, where x lies between 0 to L. L is the length of the rod. ठीक है, तो यही सेम कंडीशंस आपको कंटिन्यू करने हर एक एग्जाम्पल में. ठीक है, एंड वी नो इट्स जनरल सोल्यूशन, द मोस्ट जनरल सोल्यूशन इज c4 cos mx प्लस c5 sin mx e raised to minus c square m square t. ठीक है, अभी वन बाय वन कंडीशंस का यूज करके आपको ये c4, इसमें अभी अननोन क्या क्या दिखाई दे रहा है, c4 अननोन है, c5 अननोन है, ये हम आपको पता ही नहीं क्या है ना, ये भी अननोन है क्योंकि आपके पास बस c की इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, ये अननोन है.
ठीक है. सो ऑल दिस आर द अननोन्स दैट वी नीड टू कैलकुलेट. ओके, एंड फॉर दैट वी हैव टू यूज दिस कंडीशंस. ठीक है, तो कंडीशन 1 का कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, इट इज अ ट्रिवियल कंडीशन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट. ठीक है, सो स्टार्ट फ्रॉम कंडीशन 2. सो यूजिंग कंडीशन 2 आपको क्या गिवन है, u ऑफ 0t इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट, जस्ट पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1. So just put x equal to 0 in equation 1, you will get on LHS as u0t, है ना, on LHS you will have u0t, x 0 है तो cos 0 is 1, so you will have c4, sin 0 is 0 तो 0 होगा, और इसमें x है ही नहीं, so that term as it is e raised to minus c square m square t. But we know the value of u0t is 0, so on LHS you will have 0, correct, and right side part as it is. And we know that if product of two real number is 0, so either 1 is 0 or b is 0, that we know that is a simple result in real numbers. अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आता है तो दोनों में से एक नंबर आपका कंपल्सरी 0 होगा. तो यहाँ पे at this value 0, that implies either c4 is 0, एक तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा. But we know that this is the standard property of exponential function, that e raised to x is never 0. अब it is 0 only at x is equal to minus infinity, but ये infinity point आपके पास है ही नहीं, है ना, it is a infinite point. So we know that e raised to x is never 0, therefore this second term is never 0, and that implies c4 is 0. तो सारे इक्वेशंस में आपको पहले c4 की वैल्यू क्या आने वाली है, 0 ही आने वाली है. ठीक है, so that c4 is 0, and now write down equation 1 again. So this equation 1 become c5 sin mx, so c5 sin mx e raised to minus c square m square t, and now call it as equation number 2. सेम इक्वेशंस भी याद रखो, इक्वेशन 1 मैंने गिवन को ही बोला है जनरल सॉल्यूशन, इक्वेशन 2 मैंने इसको बोला है. नाउ कम टू थर्ड कंडीशन. थर्ड कंडीशन क्या है, एट द एंड्स ऑफ द बार व्हेन x इज इक्वल टू l लेंथ, योर टेम्परेचर इज 0, दैट इज u ऑफ lt इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल t, एंड टू यूज दिस कंडीशन वी हैव टू पुट x इज इक्वल टू l, पुट x इज इक्वल टू इन इक्वेशन 2, करेक्ट. तो क्या होगा, u l t c5 x की जगह पे l sin ml e raised to minus c square m square t. Again same logic, at this LHS is 0, okay, so either this c5 is 0, or either this sin ml is 0, or either this exponential is 0, but we know that exponential is never 0, ये कभी 0 होगा ही नहीं. Okay, can anyone tell me the reason for c5, why this c5 is not 0? Can anyone tell me this reason? अगर आपको कल का लेक्चर पता है तो समझ में आ जाएगा. Why this c5 ये भी नॉन जीरो आता है? Can anyone tell me reason? Yes. Exponential की प्रॉपर्टी है, e raised to x is never zero, therefore this term is never zero. Why this c5 is non-zero? Anyone? Yes. Give me your answer. Why this c5 is non-zero? क्या रीजन होगा? यस, बोलो, ट्राई तो करो, अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा? यस, वाई दिस c5 इज नॉन जीरो? क्या होगा अगर आप c5 जीरो लेते हो तो? इफ आई टेक c5 इक्वल टू 0, करेक्ट, दिस u बिकम 0. और आपको मैंने पहले ही बोला है कि आपको u कैलकुलेट करना है, मतलब आपको सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है. अगर वो सॉल्यूशन ही 0 आता है, सो देयर इज नो लॉजिक टू सॉल्व दिस. अगर आपका सॉल्यूशन ही 0 आता है तो ये फिर करना ही क्यों है? ओके, देयरफॉर इन एवरी केस यू हैव टू कंसीडर दैट सॉल्यूशन टू बी नॉन जीरो सॉल्यूशन. ओके, दैट्स व्हाई दिस c5 इज नॉन जीरो, अदरवाइज देयर इज नथिंग टू सॉल्व. ओके, व्हाई दिस c5 इज नॉन जीरो? एज u इज नॉन जीरो एंड दिस सेकंड एक्सपोनेंशियल टर्म, देयरफॉर इट इज नॉन जीरो. दैट इंप्लाइज sin ml इक्वल टू 0. और आपको मैंने कल रिजल्ट दिया है, क्या है वो रिजल्ट, कि अगर आपका sin x 0 आता है, दैट implies x must be n pi. If sin x is 0, that implies x is equal to n pi. तो sin ml equal to 0, that implies ml is equal to n pi. Correct? So calculate m from this. So m is equal to n pi by l, where n takes values from 1, 2, 3 up to infinity. Correct? ना, तो अभी आपने सेकंड कंडीशन से आपने यम कैलकुलेट किया. फर्स्ट कंडीशन से c4 0 आ रहा था, सेकंड कंडीशन से यम आपने कैलकुलेट किया n pi by l. नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, यहाँ पे रख दो c5 sin यम की वैल्यू n pi x by l, यहाँ पे भी यम की वैल्यू आएगी, है ना. सो आई होप इट इज विजिबल. ओके, यहाँ पे भी n की वैल्यू आएगी, विच इज, सो इट इज एक्चुअली n pi by l.
करेक्ट। यम, बस यम इक्वल टू मैंने रख दिया, बाकी कुछ नहीं, ई रेस टू माइनस स्क्वायर यम की वैल्यू एन पाई बाई एल होल स्क्वायर एंड टी, करेक्ट। ना so and here n takes values from 1 to infinity, n takes values from 1 to infinity, ओके हाँ। तो जैसे आप n को वैरी करते हो, अगर आप n इक्वल टू 1 रखते हो तो एक सोल्यूशन मिलेगा, इफ आई पुट n इक्वल टू 2 यू विल गेट अनदर सोल्यूशन, इफ आई पुट n इक्वल टू 3 यू विल गेट अनदर सोल्यूशन, मींस फॉर ईच n यू विल गेट अ डिफरेंट सोल्यूशन। बट आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। जनरल का मीनिंग क्या होता है, विच कवर ऑल पॉसिबल सोल्यूशन, ओके। सो टू कवर ऑल पॉसिबल सोल्यूशन वी नीड टू ऐड ऑल दिस सोल्यूशन, मतलब n इक्वल टू 1 का सोल्यूशन, 2 का सोल्यूशन, 3 का सोल्यूशन, सारे सोल्यूशन को आपको ऐड करना होगा। तो जैसे आप इनको ऐड करते हो दिस बिकम समेशन n रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अभी यहाँ पे जो C5 है, ओके, उसको उसमें चेंज करिए, कांस्टेंट ही है ना, तो उसकी जगह पे मैंने bn रख दिया। सो C5 रिप्लेस बाय bn, अदर चीजें आ जाती है, sin n पाई x बाय l e रेज़ टू माइनस c स्क्वायर n पाई बाय l स्क्वायर t, ठीक है। सो यू विल गेट दिस इज योर इक्वेशन 3। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस मैं इसके आगे लेने वाला हूँ, उस क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करूंगा। आई विल रिपीट माय स्टेटमेंट, मैं डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। इसके पीछे का पार्ट आपको एज इट इज ये देखकर कॉपी पेस्ट करना है। आई विल नॉट रिपीट दिस पार्ट फॉर एक्चुअल एग्जाम्पल्स, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करूंगा, बट इसके पीछे का जो भी रीजन है आपको वो देना है एग्जाम में। अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है सो यू नीड टू राइट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। अब इसके आगे नाउ यू विल हैव द वैल्यू ऑफ u ऑफ xt एंड हियर यू कैन सी देयर इज ओनली वन अननोन bn, खाली एक ही अननोन है वहाँ पे bn। तो bn कैलकुलेट करने के लिए अभी आपको लास्ट कंडीशन यूज करनी है। सो यूजिंग कंडीशन 4 विच इज u ऑफ x0 इज इक्वल टू सम फंक्शन, ओके। आपका एक्चुअल कैलकुलेशन इसके बाद ही चेंज होता है, आपको मैंने कल ही बोला था, सेम यहाँ पे भी है। हाँ, एक्चुअली इस टॉपिक में तो एक कंडीशन आपकी कम हो रही है, कौन सी, प्रीवियस टॉपिक में वो एक डेरिवेटिव की भी कंडीशन थी, डैबा u बाय डैबा t एट t इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन अभी इसमें है ही नहीं, ठीक है। सो इट एक्चुअली रिड्यूसेस योर कैलकुलेशन, ठीक है। सो नाउ कंडीशन 4 दैट इज u ऑफ x0 इज इक्वल टू f ऑफ x। सो जस्ट पुट t इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन, है ना। ये जो आपका, ये आपका फाइनल सोल्यूशन है, इसमें बस bn कैलकुलेट करके यहीं पे रख देना है, दैट इज योर फाइनल सोल्यूशन, ओके। सो जस्ट पुट t इक्वल टू 0 हियर, इफ t इक्वल टू 0 दिस e रेज़ टू 0 बिकम 1, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। So you will have summation n runs from bn sin n pi x by l, okay, but we know that the u of x0 is f of x, so f of x is equal to summation n runs from 1 to infinity bn sin n pi x by l, and we know that, ये मैंने कल के लेक्चर में भी बोला था, this is your Fourier sine series, correct। so this is your Fourier sine series where bn is equal to, so where bn is equal to 2 by l 0 to l f of x। मतलब ये कैसे याद रखना है, बस ये पार्ट आप याद रखो और उसके आगे करना क्या है, f of x को यहीं पे रख देना है, f of x sin n pi x by l into dx। एंड नाउ लास्ट स्टेप इज व्हाट, bn को सॉल्व करो और फिर से ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करो, इक्वेशन 3 में पुट करो, दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। इज देयर एनी डाउट अप टू दिस पार्ट? कुछ डाउट्स है क्या? I will take फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल से ये और भी अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। सो क्वेश्चन इज लाइक दिस, सॉल्व, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट उन्होंने मेंशन नहीं किया, ऐसे भी क्वेश्चन आपको आते हैं। सॉल्व डैबा u बाय डैबा t इज इक्वल टू डैबा स्क्वायर u बाय डैबा x स्क्वायर। आपको देखकर समझ में आ रहा है दिस इज योर वन डायमेंशन हिट इक्वेशन, दिस इज योर वन डायमेंशन हिट इक्वेशन। तो मतलब जो आजकल मतलब कल के लेक्चर में अगर दोनों जगह पे स्क्वायर स्क्वायर आता है, सी स्क्वायर समथिंग, देन इट बिकम अ वेव इक्वेशन, डैबा स्क्वायर u बाय डैबा t स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इनटू डैबा स्क्वायर u बाय डैबा x स्क्वायर, इट बिकम वेव इक्वेशन। तो आप आइडेंटिफिकेशन का पार्ट आपको आना चाहिए। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट u इज फाइनाइट, नेक्स्ट इज u0 व्हेन x इज 0, x इज 0 एंड पाई। तो इसका मतलब यहाँ पे जो यल है, लेंथ ऑफ द रॉड इज पाई, ऐसा उन्होंने दिया है ना, क्योंकि u0 हो रहा है, फर्स्ट बाउंड्री पॉइंट क्या है x इक्वल टू 0 एंड सेकंड बाउंड्री पॉइंट क्या है पाई, मतलब यल इक्वल टू पाई दिया उन्होंने। नेक्स्ट क्या दिया है, u की वैल्यू ये लेनी है, तो ये आपका f ऑफ x है व्हेन t इक्वल टू 0 टू पाई, ओके। तो यही ऑल दिस कंडीशंस आई विल राइट इन अवर रेगुलर फॉर्मेट। So this is your equation डैबा u by डैबा t equal to डैबा स्क्वायर u by डैबा x square and your boundary conditions are u of xt is finite first, second का मीनिंग क्या होता है when x is 0 u is 0, when x is pi u is 0, थर्ड का मीनिंग क्या होता है t 0 पे
t0 पे u की वैल्यू क्या है, पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स लाइज बिटवीन 0 टू पाई। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि रॉड की लेंथ यहाँ पे पाई गिवन है। ओके, नाउ व्हाट इज द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, u ऑफ x t इक्वल टू c4 cos mx प्लस c5 sin mx मल्टीप्लाई बाय e रेज टू माइनस c स्क्वायर m स्क्वायर t। ठीक है, अभी हाँ, अभी ये मतलब पहले जनरली पूरा सॉल्व करके आप वहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है राइट अबव स्टेप्स, तो ये मैं स्किप कर रहा हूँ दिस पार्ट, आई विल स्किप हियर। आपको फिर ऊपर जो ऊपर का पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया था, यू हैव टू रिपीट ऑल दो स्टेप्स और आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओगे। तो ये जो सोल्यूशन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके, ये मैं कहाँ से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसके आगे स्टेप 2 का जो लास्ट पार्ट है, ओके, इसके आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर का पार्ट आपको लिखना है। सो आई विल डायरेक्टली राइट डाउन दैट पार्ट। ओके, डोंट गो बाय दिस वे, जो अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऐसे आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। ओके, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है स्टेप्स। ओके, दैट्स व्हाई मैं वो स्किप कर रहा हूँ। सो योर u ऑफ x t इज इक्वल टू n रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी bn sin n by x by l e raised to minus a square m square plus into t। बट आपको क्या क्या पता है, c की वैल्यू यहाँ पे 1 है, क्योंकि यहाँ पे c स्क्वायर होता है, c गिवन नहीं है, मतलब c की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1। सो फर्स्ट c इज 1। l लेंथ क्या गिवन है, लेंथ क्या गिवन है पाई। ओके, तो m की वैल्यू क्या होगी, m आपने प्रीवियसली कैलकुलेट किया था n पाई बाई l, तो उसमें अगर आप l पाई रखते हो तो m की वैल्यू आती है n। ठीक है, सारे वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो क्या क्या चेंज होगा, u ऑफ x t इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी bn sin l इज पाई, पाई पाई कैंसिल होगा, सो sin nx एंड e रेज टू m की वैल्यू c1 है एंड m की वैल्यू n आती है कैलकुलेट होके। ठीक है, दैट इज e रेज टू माइनस n स्क्वायर इनटू t। अब इसके आगे आपको सॉल्व करना है। नाउ इसके आगे आपको लास्ट स्टेप से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप देखो। ठीक है, स्टेप 3 क्या, लास्ट कंडीशन यूज करो, क्या गिवन है, u ऑफ x0 इज इक्वल टू पाई x माइनस एक्स स्क्वायर 0 टू पाई, तो t इक्वल टू 0 रख देना है इस इक्वेशन में। इसको मैंने इक्वेशन 3 बोला है, क्यों 3 बोला है, क्योंकि ये जो मिडल का पार्ट है यहाँ पे दो इक्वेशन आने वाले हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, एंड नाउ t0 पुट किया, bn ये e रेज टू 0 1 हो जाएगा, यू विल गेट ओनली bn sin nx। ठीक है, बट u ऑफ x0 इज व्हाट, पाई x माइनस एक्स स्क्वायर, सो पाई x माइनस एक्स स्क्वायर समेशन इक्वल टू समेशन n रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी bn sin nx। नाउ व्हाट इज bn, bn का फॉर्मूला आपको पता ही है, 2 by l 0 to l f of x sin n by x by l, ये जनरल फॉर्मूला है। बट अगर आपको ऐसे याद नहीं रखना है तो आपको मैंने क्या बोला था कल, आप बस क्या करो 2 by l 0 to l याद रखो और ये फंक्शन आपको यहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो, पाई x माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन nx, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, वही मैंने किया एक्चुअली। ठीक है, बट आपको यल पता है, यल क्या आपका पाई गिवन है, रॉड की लेंथ पाई गिवन है, सो 2 बाई पाई 0 टू पाई। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक्चुअली किया क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये रख दी है, यल इक्वल टू पाई था इसलिए ये कैंसिल हो गया, यू विल गेट दिस। तो कैसे भी याद रखो, अभी इसके आगे बस आपको सॉल्व करना है, हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का बाय पार्ट्स रूल आपको यूज करना है। तो ओके, बाय पार्ट्स रूल ये होता है u इंटू वी वन माइनस यू डैश इंटू वी टू प्लस यू डबल डैश इंटू वी थ्री एंड सो ऑन, जनरलाइज रूल ऑफ बाय पार्ट्स। इसमें जनरली u फंक्शन आपका क्या होता है, जिसका डेरिवेटिव आफ्टर सम स्टेप्स 0 होता है ना, डेरिवेटिव वैनिशेस, जिसका डेरिवेटिव आफ्टर सम स्टेप्स 0 होता है, दैट यू हैव टू कंसीडर एज u एंड अदर आपका ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा v। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा ये जो पाई x माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन है, ओके, इसके डिग्री 2 है, मतलब इसका थर्ड डेरिवेटिव 0 होगा, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव आफ्टर सम स्टेप्स 0 होने वाला है, देयरफॉर कॉल इट एज u एंड ऑटोमेटिक जो भी आपका सेकंड होगा दैट बिकम v। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है, पहले u रख दो, सो ये बाकी चीजें एज इट इज u रख दो। ओके, v का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस कॉस nx अपॉन l। फिर उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कंटिन्यू करना है। ओके, इसका जाता है डेरिवेटिव, इसका जाता है इंटीग्रेशन, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पाई माइनस 2x, अल्टरनेटिवली प्लस एंड माइनस साइन, ये प्लस था तो यहाँ पे माइनस साइन, नेक्स्ट साइन प्लस होगा, तो ये इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन क्या है, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन, तो माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। फिर इसका डेरिवेटिव आता है -2, इसका इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस, सो इट बिकम प्लस, सो कॉस एन एक्स अपॉन एन क्यूब एंड योर लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू पाई, योर लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू पाई। ओके, अभी ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, 0 एंड पाई लिमिट में दोनों वैल्यूज पे क्या क्या होगा। तो जब आप x इक्वल टू पाई पुट करते हो, है ना, तो यहाँ पे पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, ये टर्म 0 होगा x इक्वल टू पाई के लिए, ये नहीं रहेगा।
x इक्वल टू पाई के लिए यहाँ पे साइन n पाई आता है और आपको पता है साइन n पाई आपका क्या है 0, तो ये भी टर्म 0 होगा, खाली ये टर्म रहेगा। ठीक है, जब आप x इक्वल टू 0 पुट करते हो ये x 0 0 ये भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे साइन 0 क्या होता है 0, ये भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब दोनों लिमिट के लिए खाली बस ये लास्ट टर्म रहने वाला है, तो वही मैं ले रहा हूँ डायरेक्टली -2 cos nx upon n cube। नाउ पुट अपर लिमिट -2 cos n pi upon n cube। नाउ माइनस माइनस प्लस होगा एंड पुट लोअर लिमिट cos 0 is 1। ठीक है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है 2 upon n cube कॉमन आ रहा है ब्रैकेट में 1 माइनस cos n pi, बट cos n pi ये आपको मैंने कल दिया था, cos n pi is actually -1/n। दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट, आप नहीं भी करते तो भी चलेगा। तो 1 माइनस -1/n and 2 become 4 upon n pi cube। करेक्ट? ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ भी चेंज नहीं है। अगर आप कल का लेक्चर देखते हो ना तो सेम चीजें मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, एंड नाउ आई विल गिव यू 4 upon n cube pi। हाँ ये सॉरी ये n cube pi। ठीक है, नाउ दिस इज 4 upon n cube pi। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ओके क्या हो रहा है बस मैं ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो नाउ आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। ओके, सबके पास अभी नोटबुक होगी, पेन होगा, ओके, एंड यू हैव टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल रैंडमली, मैं किसी को भी पूछने वाला हूँ एंड यू हैव टू आंसर 1 by 1। ठीक है, डू इट, जस्ट मेंशन, ये आपको करना है। ओके, दैट इज द टास्क, जस्ट मेंशन। आप नोटबुक में बस ये लिखो, राइट डाउन दिस इक्वेशन, तो सी की वैल्यू सी की बने, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन, दैट इज इनफ। एक्चुअली एक और कंडीशन है u इज बाउंडेड, वो उसका कुछ यूज नहीं है, इट इज अंडर कंसिडरेशन, सो मे बी इन सम एग्जांपल इट इज देयर और मे बी इन सम एग्जांपल इट इज नॉट देयर। ओके, उसके बाद बस u कैलकुलेट करो, फिर मैं आगे का पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया भी है। ठीक है, एंड स्टार्ट करो। I will show you the solution also. First note करो, question note करो ये, note this question। Condition we already there. So dabba u by dabba t। स्टार्ट सॉल्विंग दिस एंड टेल मी फाइनल आंसर। एटलीस्ट bn बोलो क्या आता है मुझे, बस यहाँ पे आपका bn से ही मतलब है, बाकी चीज़ आपको पहले ही पता है। बट आप 1 by 1 करो, स्टार्टिंग से करो, पूरी चीज़ें करो, मतलब C1 C2 सारा कैलकुलेशन करना है। ओके, दिस इज योर इक्वेशन। या आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो क्विकली सो दैट आई कैन गो फॉरवर्ड। ठीक है, आई होप सबने नोट किया है। सो दिस इज फॉर यू ओनली। ओके, अगर आप फिर भी नहीं कर रहे हो तो उसमें आपका लॉस होगा, क्योंकि दो टॉपिक सिमिलर है, ऑलमोस्ट 70% 80% कैलकुलेशन सिमिलर है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आता है तो इसका फुल वेटेज मिलेगा। तो ये आपका इक्वेशन है, दिस इज हीट इक्वेशन, आपने आइडेंटिफाई किया क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, दिस इज योर हीट इक्वेशन। तो उसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है जो मैंने ऊपर दिया था आपको, मैं फिर से लिखता हूँ, u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू C4 cos mx प्लस C5 sin mx मल्टीप्लाई बाय e रेज टू माइनस c स्क्वायर m स्क्वायर इंटू टी, है ना। अभी c की वैल्यू देखो क्या है वहाँ पे, c की वैल्यू c ही गिवन है। ठीक है, तो आई थिंक कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं होगा। स्टार्ट करो नाउ, यूज कंडीशन 1। ओके, सो यूजिंग कंडीशन 1, क्या है कंडीशन 1, u ऑफ 0t इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ, सो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, आई कॉल दिस इक्वेशन टू बी 1। ठीक है, तो क्या रहेगा, लेफ्ट साइड में u 0t, अभी मैं क्विकली कर रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड में x इक्वल टू 0 पुट किया तो इसकी वैल्यू 0 है, सो लेफ्ट साइड में 0 इज इक्वल टू cos 0 इज 1 एंड sin 0 इज 0, तो C4 मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा। करेक्ट, बस वी नो दैट दिस नंबर इज नेवर 0, एज दिस नंबर इज नेवर 0 दैट इम्प्लाइज C4 इज इक्वल टू 0।
आप रीजन देना है तो दे दो वाई दिस नंबर इज नॉन जीरो, नहीं दिया तो भी चलेगा। ओके, ये हो गया फर्स्ट। नाउ यूज कंडीशन 2, सॉरी हाँ C40 है तो यू ऑफ एक्स टी लिखो, देयरफॉर यू ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू C5 sin mx e raised to minus c square m square t. And now use second condition. So using condition 2, ठीक है, क्या है वो सेकंड कंडीशन? आई थिंक लेंथ क्या गिवन है, यल ही गिवन है ना, हाँ यल इज द लेंथ। सो यल टी ये चेंज होती है लेंथ, यल टी इज इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट, पुट x इज इक्वल टू n इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 मतलब ये, ठीक है। हाँ तो x इक्वल टू यल पुट करते तो यहाँ पे u यल टी आ जाएगा, बट u यल टी 0 इक्वल टू C5 sin ml e रेस टू माइनस c स्क्वायर m स्क्वायर t, है ना। बट आपको पहले ही पता है कि ये नंबर नॉन जीरो है। अब अगर आप C5 को 0 लेते हो तो u 0 हो जाएगा, इसलिए ये भी नंबर आपका नॉन जीरो है। एंड दैट इम्प्लाइज sin ml must be 0, that implies sin x0 implies x is equal to n pi, and ठीक है, that implies m is equal to n pi by l। ओके, आगे m इक्वल टू n pi by l इसमें रखना होगा आपको इक्वेशन 2 में। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या था वो, u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू C5 ना sin mx, बट m की वैल्यू क्या है, n pi by l, सो n pi x by l इंटू ई रेस टू माइनस सी स्क्वेयर, m स्क्वेयर मतलब क्या होगा, n pi by l होल स्क्वेयर इंटू t। ओके, दैट इज योर इक्वेशन 3। ओके, ये एक्चुअली आपका फाइनल आंसर ही है, नहीं सॉरी इसको नहीं बोलना इक्वेशन 3, आगे आगे बोलना है, आगे बोलना है। तो दिस n टेक्स वैल्यूज फ्रॉम 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, तो यार ऑल्सो n टेक्स वैल्यूज फ्रॉम 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया, हर एक n के लिए सोल्यूशन मिलता है, फिर इसको ऐड करना होगा। सो द कंबाइंड सोल्यूशन इज देयरफॉर द कंबाइंड सोल्यूशन इज, क्या मिलता है आपको वो, u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू समेशन n रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, C5 को जगह पे अभी n रख दो, साइन n पाई x बाय l e रेस टू माइनस c स्क्वायर n पाई बाय l होल स्क्वायर इंटू t, ठीक है। एंड नाउ कॉल दिस एज इक्वेशन 3, ये आपका फाइनल आंसर है। इसमें बस bn को कैलकुलेट करना है, और bn कैलकुलेट करने के लिए सो टू फाइंड दिस bn आपको लास्ट कंडीशन यूज करनी है। सो यूजिंग कंडीशन 3, लास्ट कंडीशन क्या दिया है, क्या गिवन है आपको, u ऑफ x0 इक्वल टू, देखना होगा क्या गिवन है, क्या गिवन था आपको 50, कांस्टेंट वैल्यू गिवन है। ओके, सो इट बिकम मोर इजी नाउ, सो दैट वैल्यू इज 50। सो पुट t इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, तो लेफ्ट साइड में u x0 आएगा, उसकी वैल्यू 50 है। सो 50 इक्वल टू समेशन n रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी bn sin n pi x by l e raised to 0 is 1, ठीक है। नाउ दिस इज एक्चुअली द फोरियर साइन सीरीज, सो विच इज Fourier sine series where bn इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है 2 बाई एल लिखो, 0 टू एल लिखो, फिर क्या करना है, इस 50 को bn की जगह पे रख दो। सो 50 साइन n पाई x बाई एल dx, ठीक है। सो इसमें सारे कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालो, है ना, 50 इंटू 2 बिकम 100 बाय l 0 to l sin n pi x by l into dx. Go to next page.
ठीक है. सो इक्वल टू 100 अपॉन यल. साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस. सो माइनस कॉस n पाई x बाय l डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ द ब्रैकेट टर्म विद रिस्पेक्ट टू x. वो क्या आएगी? n पाई बाय l एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 टू l. तो ये जो नीचे का n पाई बाय l ये ऊपर जाएगा, जो l से कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे आने वाला है 100 अपॉन n पाई in bracket. Put upper limit. If I put x is equal to l cancel होगा. For upper limit you will get cos of n pi only. Minus minus plus होगा because of this minus and cos 0 is 1. है ना? So which is equal to 100 upon n pi 1 minus cos n pi. Cos n pi की वैल्यू क्या है? minus 1 raised to n. ये फॉर्मूला है. That is the value of bn. हो गया क्वेश्चन. Just put this value इन इक्वेशन 3. तो ओके, वो आपका फाइनल आंसर है. मैं आपको पुट करके देता हूँ तो आपको लगेगा कि यही पे हो गया. सो यू ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू क्या था वो? यू ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू समेशन n रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. यहाँ पे bn था, bn की जगह bn लिख दो. 100 अपॉन n पाई 1 माइनस माइनस 1 रेज टू n मल्टीप्लाई बाय क्या था? साइन n पाई x बाय l मल्टीप्लाई बाय एक और फैक्टर था विच इज e रेज टू माइनस c स्क्वायर. अभी m की वैल्यू लिखनी होगी n पाई बाय l स्क्वायर इनटू t. दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है? इज दिस क्लियर?